all for the day 4 of 1 week faculty development program on AI tools for effective implementation for outcome-based education, jointly organized by OBE and Internal Quality Assurance Cell. Today, we are joined here by our expert speaker, Dr. G.K. Avari, and to welcome him, now I'd like to request Dr. Prashant Thakre sir to kindly come forward and extend a warm welcome to our esteemed guest. Thank you, sir. It's with a great pride and honor that we welcome Dr. G.K. Avari as our esteemed guest speaker today. Dr. Avari is a distinguished academician, researcher, and administrator with over 30 years of teaching experience at UG, PG, diploma, and a research level. He holds a PhD in computational fluid dynamics and has contributed immensely to engineering education as a head of automobile engineering at Government Polytechnic, Nagpur. Dr. Avari is recognized as AICT Margadarshak, an expert panel member for NB accreditation and NEP 2020 implementation. He is also a PhD supervisor at 4 Indian universities, having guided 18 doctoral research scholars to completion. Dr. Avari has authored 10 books, published over 80 international journal articles, and holds 10 patents and copyrights, including international patents in Australia and Africa. His areas of research includes graphical modeling, additive manufacturing, CDF, and vehicle dynamics. His contribution to curriculum development, faculty training, and industry collaboration have earned him numerous awards, including Shastri Gaurav Puraskar and Maharashtra Gaurav Puraskar. We are truly privileged to have Dr. Avari to share his vast knowledge and insight with us today. Please join me in welcoming him with a warm round of applause. Hello. Hmm? Oh. So good morning to all of you. Okay. So today we will see basically the education technology integration in the NEP 2020. Already NEP implementation has been started, and lot many things have been happened also. In the state of Maharashtra, it is being already implemented, and in some of the state it may be under the process. So at the outset, let me congratulate the honorable principal of this institute and the Dr. Radharaman Shah for taking the initiative to organize this capacity building program on basically integration of the IT tool for the assessment and for the various kind of things. And I hope that this is one of the latest topic which is being granted to TGPCT. So congratulations to all of you, because I have before the Shah put up in front of me, I have not heard of the such topic that it can be happened in the institution for the FDP. And lot many FDPs were conducted last year in the Atal Academy program. Around 452 FDPs were conducted, and 100 FDPs were conducted in the Polytechnic category. So around 552 FDPs were conducted, and around 100 were conducted in the online mode. So we can say that roughly 700-800 FDPs were conducted, but neither of them, not a single of them were having this kind of theme and this kind of the topic.
So really you are gaining something new from this faculty development program which is sponsored by the ministry. And today's my topic which is being allotted to me is basically education technology integration in NEP 2020. Okay, day before yesterday, I had been to the regional office of the vocational education department, that is called as the Department of Vocational Education and Training, which basically looks for the ITIs and the MCVC courses, technical high school in the state of Maharashtra, wherein around 45 principals were there, ITI principal. For them, we have conducted the basically workshop, and this particular topic also it has came from the government of Maharashtra as per NEP guidelines, that in each and every process there is should be a use of the artificial intelligence, which means that even our processes are being modernized. Processes are being modernized in the sense that जैसे कि लीव मैनेजमेंट है तो लीव मैनेजमेंट मॉडर्नाइज हो रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम भी ऑनलाइन तरीके से हो गया है. ओके, इंक्वायरी के लिए अगर जाते हैं किसी गवर्नमेंट के साइट पे तो चैटबॉट का यूज़ किया जा रहा है, चैटबॉट ही आंसर देता है. सो देयर इज़ ए यूज़ ऑफ artificial intelligence almost in each and everything, and now they are thinking of implementing it in every cases, which means that even salary bills, हमारे यहाँ bills बोलते हैं उसको, तो salary bills will be generated automatically linked with the biometry, and salary will be released by the treasury automatically by making a use of artificial intelligence, so that there is a minimum use of the intervention. And this comes under the basically the 100 days plan of the government of Maharashtra and the other government. So the technology, it is playing a vital role in each and every cases, whether it is administration, whether it is a teaching, whether it is a academics, and learning the technology and using it in the right perspective, it is very important. So today we will see the education technology integration with respect to NEP 2020, okay, where the NEP has guided us that कि कहाँ कहाँ हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, वहाँ पे क्या क्या लिखा है. ओके, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज है, ITI है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ऐसा नहीं है. सभी जगह पे वो प्रोविजंस किया गया है कि इन ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम द टेक्नोलॉजी शुड बी यूज. So these are the silent features that of the NEP 2020, high quality education opportunities integrated with effective skills making education and scaling aspirational, removing distinction between general and vocational education, which means that the hard barriers were there, like a art student, commerce students, science student. Now from this year onward, these hard barriers will be removed in the गवर्नमेंट. 10वीं के बाद अभी करेंगे तो हम लोग बोलते थे कि आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का है या साइंस का है, वो सेपरेशंस रिमूव हो रहे हैं. ओके, पर्टिकुलर डोमेन रहेगा, वो डोमेन में वो स्टडी करेगा जरूर, और उसको आर्ट्स का स्टूडेंट या साइंस का स्टूडेंट नहीं बोलेंगे. सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द NEP 2020. सो मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन across the sciences, commerce, management and technical education, and social sciences, arts and sport. So it is a multidisciplinary and the holistic education, wherein the progress card will be holistic progress card, because you know that Neeraj Chopra securing gold medal in the Olympics, but he cannot be awarded with the Bachelor of Physical Education और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री. ओके, हमारे यहाँ कैसा है कि पढ़ो, वो सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट देके जो उतने क्रेडिट्स अर्न करो, उतने क्रेडिट्स आप अर्न करोगे तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी या फिजिकल एजुकेशन की डिग्री मिलेगी, है ना. भलाई वो एक्सेलेंट है फिजिकल एजुकेशन की इसमें, या फिर अपने फील्ड में वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाता है, लेकिन कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको बीएड की डिग्री या एमएड की डिग्री, एमपीएड की डिग्री जो है वो दी जाए. तो इसलिए कैसा है कि होलिस्टिक एजुकेशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसको भी मैप करने की
ज़रूरत है और उसको भी मैप करेंगे कहीं ना कहीं पे और उसको क्रेडिट देंगे, एंड दैट काइंड ऑफ एजुकेशन इज पॉसिबल. Then multiple entry and multiple exit pathways. So here single time entry was there. Single time entry means in the engineering colleges students after completing the 12th class education, CET, or appearing for the JEE gets an admission into the first year, and the entry is there into the direct second year. Those who are completing the diploma in engineering education in the direct second year by way of the lateral entry. But in NEP 2020, the multiple entry and multiple exit, it is being thought of, it is being provided. इसका मतलब है थर्ड ईयर लेवल पे भी डायरेक्ट एंट्री मिलना चाहिए. अभी वो हुआ नहीं है बिकॉज IITs and NITs आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फिलोसॉफी. ओके, जैसे कि IIT में बच्चा आता है JEE एडवांस करके, JEE एडवांस करके जब कोई स्टूडेंट जाता है तो वो एजुकेशन छोड़ के नहीं जाता है, ओके, कंप्लीट करके ही जाता है. ऐसे एक दुख का स्टूडेंट्स रहते होंगे कि जिनको बाद में जमता नहीं है, और जमता नहीं है इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं. अदरवाइज नोबडी लीव्स द एजुकेशन फ्रॉम द IIT. तो मल्टीपल एग्जिट में उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में ये एक्सेप्ट किया गया है, तो वहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते. And IIT is also not ready to provide the multiple entry also. Multiple entry मतलब क्या है कि हमारे यहाँ तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में बच्चा आता है लैटरल एंट्री के थ्रू, लेकिन कोई बच्चा अगर आपके ही डिप्लोमा से पास करके IIT में जाना चाहता है तो डायरेक्ट सेकंड ईयर IIT में कोई एडमिशन नहीं है. IIT में जाना है तो JEE एडवांस करके ही जाना है. तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ कुछ जगह तक जो है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट it is being defined, but it is being taking shape, and in the university curriculum it is there. Imaginative and flexible curricular structure, flexible curricular structures are there. Okay, so earlier it was a hard separation. Okay, flexible curricular structure means like electives were there. Okay, हम लोग जिसको इलेक्टिव बोलते थे, 3 इलेक्टिव रहते थे, 3 में से 1 इलेक्टिव लो, 2 इलेक्टिव लो, आपकी अपनी ब्रांच तैयार करो और वो आगे चलो. अभी इसमें जो है वो मल्टीपल इलेक्टिव्स है, फ्लेक्सिबल करिकुलर है. तो फ्लेक्सिबल करिकुलर में कैसा है कि वो दूसरे ब्रांच का भी कुछ सब्जेक्ट लेंगे, उसकी एक बास्केट रहेगी, वो बास्केट में से लेंगे, है ना. 18 से 20 क्रेडिट अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के लेता है इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट, तो उसको माइनर कंप्यूटर साइंस भी मिलने की, डिग्री मिलने की इसमें प्रोविजन है. मतलब कैसा है कि जो डिग्री कर रहा है उसको एडमिशन मिली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो अगर माइनर आईटी में करना चाहता है तो माइनर आईटी से वो कर सकता है. 18 से 20 क्रेडिट उसको अर्न करना है. तो इस तरह का फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर दिया है. कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट बेस्ड एकेडमिक एंड स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. सो NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज देयर इन इंडिया, और उन्होंने 10 लेवल्स डिफाइन किए हैं NSQF के. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरह के 10 NSQF लेवल्स डिफाइन किए हैं. जो बच्चा 10वीं होता है उसका लेवल है 3.0. ठीक है, अब 10वीं करके जो है वो 11वीं 12वीं करता है तो वो उसका लेवल होता है 4.0. तो 12वीं करके जो बच्चा आता है उसकी NSQF लेवल आपके पास आने के पास 4.0 है. तो 4.0 से लेके हर एक साल का एक एक अगर ऐड करेंगे तो 4.5, 5.0, फिर 5.5, फिर 6.0. तो 4 साल में जो 12वीं करके इंजीनियरिंग कर रहा है वो NSQF लेवल 6.0 से लेके एग्जिट ले रहा है, आपके यहाँ से वो बाहर निकल रहा है. ठीक है, जो डिप्लोमा करके आ रहा है उसमें 10वीं के बाद में 3 साल किया है तो 3.5, 4.0, और थर्ड ईयर करके आया है मतलब 4.5. तो 4.5 करके आएगा तो लैटरल एंट्री करके वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में ज्वाइन करेगा. तो NSQF के लेवल्स के साथ में इसको स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को जो है वो जोड़ दिया है. उन्होंने कुछ NSQF लेवल में कॉम्पिटेंसी दी है. ओके, दे हैव डिफाइंड द कॉम्पिटेंसीज दैट दिस कॉम्पिटेंसी शुड बी मैप, उसको वो आना चाहिए. अब कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर डिप्लोमा या डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ओके, उसकी एक कॉम्पिटेंसी लिखी गई है. ओके, और वो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट था उसका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस.
अब इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, उसके लिए कॉम्पिटेंसी लिखी गई है टू मेंटेन, ओके, मेंटेन दी हाउस होल्ड अप्लीकेशंस या फिर मेंटेन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दिस इज द कॉम्पिटेंसी विच इज बीइंग रिटन। लेकिन अगर इंजीनियरिंग होने के बाद में उसके घर में कुछ फॉल्ट हो गया, ओवन में कुछ फॉल्ट हो गया, ओवन या फिर इसमें कुछ घर में कुछ फॉल्ट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, तो किसको बुलाता है वो? आईटीआई इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, वो खुद नहीं कर पाता। कॉम्पिटेंसी तो लिखी थी इंजीनियर की कि भाई मेंटेन द अप्लायंसेस, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर घर के भी कुछ फॉल्ट आया या ऑर्गेनाइजेशन के भी फॉल्ट आया तो वो कहाँ पे लेके जाता है? वो वहाँ पे लेके वो आईटीआई वाले को बुलाता है, इलेक्ट्रिशियन को, और वो वहाँ से जो है रिपेयर करके लेता है। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर की कॉम्पिटेंसी लिखी गई है कि मेंटेन द व्हीकल, ओके, मेंटेन द व्हीकल मैकेनिकल इंजीनियर की कॉम्पिटेंसी है। लेकिन 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में ओके गाड़ी अगर बीच में पड़ गई तो वो गाड़ी बीच में ही छोड़ देता है, फोन कॉल करता है, गाड़ी टो करके लेके जाना है, ठीक है, पैसे देता है टो करने वालों को, लेकिन बोनट खोल के वो रिपेयर नहीं कर सकता या मेंटेन नहीं कर सकता, विच मीन्स दैट द कॉम्पिटेंसीज स्किल्स विच वेर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द एजुकेशन, दैट स्किल्स आर नॉट बीइंग एक्वायर्ड। तो ये पुराने एजुकेशन सिस्टम में 1986 में या 1960 में जो कोठारी कमीशन आया था हमारे देश में, जिसके चलते हुए जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गई, उसमें ये ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स जो है वो एनईपी 2020 में स्किल के द्वारा रिमूव करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब ये कहाँ तक सक्सेस होगा, क्या होगा, ओके, वो तो आगे 30-40 साल बाद पता चलेगा कि हाउ इट इज सक्सेसफुल, ठीक है। then digital online learning, then provision for lifelong learning. So these are the basically silent features of the NEP 2020. Okay, in program outcome which is being written here also you can see that lifelong learning is there, PO12. Okay, recently I could see in one of the examination that the company wants to employ an engineer, okay, with the tools, okay, adaptable to the new technology. And these kind of recruiting, these what they should look for, which kind of qualities they should look for, which kind of PO they should look for in an engineer, whether they should look for the modern tool usage, tools and experimentation, okay, PO5, or whether they should go for the lifelong learning, which means that engineers, they should be adaptable to the new technology. This is what it is being expected, क्योंकि सारे जगह इंडस्ट्री में जहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो चेंजेस बहुत हो रहे हैं, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, जो भी थ्रस्ट टेक्नोलॉजीज है वो थ्रस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है। मैन पावर कम करना ये एक मोटो है, उसके साथ साथ क्वालिटी देना, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, वो एक मोटो है। तो इसके लिए कैसा है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो दिया है, दे शुड बी एडाप्टेबल टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। आगे ये यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है 5 साल बाद ही जिस कंपनी में काम करेंगे वहाँ की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएंगी। सो देयरफॉर देयर इज ए प्रोविजन फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन केस ऑफ द NEP 2020। ये इसके पैरास दिए हैं, ये पैरास से ये लिया गया है, ठीक है। So flow of my presentation, we will see the ABC curricular framework, okay, teaching, learning and evaluation reforms and dual and joint degree program. ये सारे के सारे cover नहीं होंगे in another 1.5 hour or 1 hour span of time, but I will try to touch basically the digital integration, digital technology. Okay. So what is the academic bank of the credit? Okay. ABCID is a 12-digit alphanumeric code. Okay, this is alphanumeric code. Again, it is given by the ChatGPT, which is wrong answer. Alphanumeric code. It is a numeric code only. Okay, ये ChatGPT का है 12-digit code alphanumeric. लेकिन आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वेदर इट इज़, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि 12-digit जो ID मिलता है वो alphanumeric है, न्यूमेरिक है, ओके, कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, ओके, और नन ऑफ द अबव, तो इसलिए बता रहा हूँ। सो 12-digit ABCID is a numeric code assigned to each student to digitally store, manage and assess their academic credits
including degrees, diploma, certificates, and training details, and co-curricular activities. So this is being done so that enabling students mobility across higher education institution. What is the purpose of the ABC ID? ABC ID serves as a digital identity for students in the field of education, facilitating seamless academic tracking and credit transfer across different higher education institutions. Okay, students need to create ABC ID. If students are not creating, then in that case organization need to create a ABC ID. ABC ID मतलब क्या है? आधार कार्ड का जैसे नंबर दिया है, उस आधार कार्ड जैसा एक डिजिटल नंबर दिया गया है हर एक स्टूडेंट को, जिसमें उनके जो क्रीडेंशियल्स रहेंगे वो क्रीडेंशियल जो है वो वहाँ पे सेव करके रहेंगे, डिजिटली स्टोर रहेंगे. एंड वेन एवर दे विल मूव फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन और अनदर इंस्टीट्यूशन, द डिजिटल मूवमेंट ऑफ द क्रीडेंशियल विल बी देयर. Okay, no need to provide hard copy. They will provide you just access to that ABC portal. So if you are an autonomous institution, you have to create your own ABC ID. Okay, and in that ABC ID, the controller of examination or the examination cell is expected to store the documents digitally. Okay, अब जो बच्चे 2 साल पहले CBSE में पास हो चुके हैं, उनके पास में ऑलरेडी ABC ID है. Okay, CBSE school has created the ABC ID for them. Okay, जो बच्चे स्टेट बोर्ड में हैं वो बच्चों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको अपार आईडी बोलता है, ABC ID को. ओके, अपार आईडी की एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइट भी है. तो अपार आईडी इज देयर. वो अपार आईडी मतलब ABC ID है. तो अपार आईडी इज क्रिएटेड. ओके, बीच में आपने पेपर में न्यूज़ भी आई थी, वो भी आपने पढ़ी होंगी कि अपार आईडी आधार लिंक हो गया है करके, और आधार कार्ड बच्चों को क्यों ले रहे करके, आधार लिंक क्यों कर रहे, इस तरह का था. लेकिन उसमें से 4 डिजिट जो है वो आधार से लिंक अभी भी है, आधार की 4 डिजिट डाले हुए. सो दैट अपार आईडी इट इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम दिस ईयर. तो आपके पास अभी जो बच्चा आने वाला है जो 12th करके CET दे के आएगा, भला ही CBSE से नहीं आएगा, स्टेट बोर्ड से जो आएगा वो अपना ABC ID लेके आने वाला है, उसको बोलेंगे वो अपार आईडी. अब वो अपार आईडी का वो शेयर करेगा और उसी आईडी में आपको क्रीडेंशियल सारे जो है वो वहाँ पे देना है. अब ये क्यों ऐसा मूवमेंट पॉसिबल है? ओके, फॉर एग्जांपल इन NEP 2020 देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द क्लस्टर यूनिवर्सिटी. ओके, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द क्लस्टर यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जांपल, ओके, स्नेहल अभ्यंकर्स डॉटर इज गुड इन सिंगिंग. ओके, इफ शी वांट टू अर्न सर्टेन क्रेडिट from the singing, and if she is in the engineering education, तो सिंगिंग पॉसिबल है क्या? उनके लिए सिंगिंग के क्रेडिट लेना पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट शी विल डू दैट, शी विल गो टू द म्यूजिक स्कूल विच इज़ अटैच विद दैट इंस्टीट्यूशन, और वहाँ से वो क्रेडिट मैप करेगी, सिंगिंग करेगी, और सिंगिंग के जो क्रेडिट है वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे. इसका मतलब क्या है कि इन नागपुर ऑल्सो देर इज़ ए वन यूनिवर्सिटी which is being coming up, which is called as the cluster university, government cluster university, which is being coming up in Nagpur, maybe from this academic session or maybe from the next academic session. वो cluster university में क्या क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है जो कि और मिहान में है, आपके पास में है. दूसरा है जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है, ये भी उसका पार्ट है. तीसरा जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसको हम ड्राइंग मतलब कॉलेज भी बोलते हैं, चित्रकला महाविद्यालय. तो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है, और कुछ है मॉरिस कॉलेज है शायद, जहाँ पे BSc MSc या अलग अलग कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं, गवर्नमेंट का कॉलेज है. और एक कॉलेज है जिसमें जो है वो ऐसे 5 कॉलेजेस को अटैच किया गया है. These 5 colleges will form a part of the cluster university. So for example, students studying in Government College of Engineering Nagpur, okay, in a civil engineering branch, wants to attain certain credit from the forensic science, they will go to the Institute of Science in the forensic science. वो अपना क्लास उस सब्जेक्ट का वहाँ करेंगे, उसके 2 क्रेडिट जो है वो यहाँ पे मैप हो जाएंगे. So within the institutions also students are supposed to move. ठीक है, अलग अलग क्रेडिट लेने के लिए पूरा सेमिस्टर पढ़ेगा वहाँ पे कि सेमिस्टर का एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो बात अलग है उसके चॉइस के हिसाब से.
but therefore, okay, ABC ID is being required for them. The student can register for an ABC ID through the DigiLocker website on the ABC website. Okay, what are the benefits of the ABC ID? Unique student ID provides a permanent identifier for each student. Once the credentials are digitally stored by the institution, if the student goes for the interview, no need to show the hard copy of the mark sheet. जस्ट उसको इंटरव्यूअर को शेयर करना है अपने लॉगिन आईडी. इंटरव्यूअर विल डिजिटली वेरीफाई दी डॉक्यूमेंट वेदर इट इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट. एकेडमिक प्रोग्रेस मॉनिटरिंग facilitate continuous monitoring of students academic performance. ओके, तो ये हमने बोला है कि इसमें प्रोग्रेस कार्ड जो बनने वाला है वो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहेगी. मतलब जो बच्चा स्कूल से आता है वो बच्चे का कैरेक्टर जो है या वो उसके क्रीडेंशियल्स है. अभी तक के मार्कशीट में क्या आता है? ओके, एम्बेडेड सिस्टम में इतने मार्क, पीएन जंक्शन या ईडीसी में इतने मार्क, ईएमएफ में इतने मार्क. इसके अलावा कुछ रहता है क्या मार्कशीट में? नहीं. नो क्रीडेंशियल इज देयर. हियर ऑल टाइप ऑफ क्रीडेंशियल विल बी देयर. मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैरम में बच्चा अच्छा है, कैरम में उसको मेडल मिला हुआ है, तो वो भी स्कूल से लिखा हुआ रहेगा कि ही इज गुड इन कैरम. ओके, जैसे हमारे पास बच्चा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि बेटा सिंगिंग कंपटीशन लेना है तो कौन सिंगिंग करेगा, कौन सिंगिंग करेगा. पहले ही बच्चे शाय रहते हैं, वो आते नहीं है, डायस पे आके गाना गाने के लिए रेडी नहीं होते हैं, या फिर जो है मैं नहीं करूँगा ये करूँगा. और सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेशन 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 आते हैं. ठीक है, तो इसलिए कैसा है कि वो स्कूल से जो उसको जो इंटरेस्ट था, उसने जो एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज ली है वो भी प्रोग्रेस कार्ड का, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का पार्ट है, विच विल बी ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ओवर देयर, सो दैट द एकेडमिक प्रोग्रेस मॉनिटरिंग इज देयर. ओके, क्रेडिट ट्रांसफर है. अब कुछ बच्चे जो है वो स्कूल में नॉटी होते हैं. ओके, बट वी डोंट नो स्कूल में नॉटी कैसे होते हैं, है ना. कुछ बच्चे जो है सलमान खान की मूवी देखते हैं, सलमान खान की मूवी देख के जो है सलमान खान ऐसे शर्ट निकालता है हर पिक्चर में. अभी सिकंदर आया है ना, सिकंदर में निकाला है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन हर मूवी में ऐसा शर्ट निकाल के फेंक देता है. तो कुछ बच्चे जो सलमान खान के फैंस है वो जाके इस तरह का करते हैं. सलमान खान की एक मूवी आई थी टाइगर, है ना, जिसमें वो किक मारता है ऐसा, तो किक मारता है दिखाता है. तो कुछ बच्चों ने जो है वो रिपीट किया था. ओके, कुछ बच्चों ने जो है वो रिपीट किया था, मतलब क्लास में ही वैसे किया था कि किक मारी थी स्कूलों में. ओके, ड्यू टू सलमान खान. तो इसलिए कैसा है कि वो चीज़ें भी जो है वो प्रोग्रेस कार्ड के ऊपर आएंगी. प्रोग्रेस कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा कि भाई स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चाइल्ड, स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चाइल्ड, या इस तरह के यहाँ से वो आया है. सो दैट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इज देयर. देन क्रेडिट ट्रांसफर एनेबल द स्टूडेंट टू ट्रांसफर क्रेडिट अर्नड एट वन इंस्टीट्यूशन टू द अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो क्रेडिट ट्रांसफर उसके हो जाएंगे. मान लीजिए डिप्लोमा में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी अगर पढ़ के आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी वो सेकेंड ईयर में यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी पढ़ने की उसको सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल में आने की जरूरत नहीं है. वो बोलेंगे सर मैंने ये क्रेडिट तो ऑलरेडी मैप किए हैं, ऑलरेडी मेरे क्रेडेंशियल्स है, तो मुझे इसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट दीजिए. Okay, then it is possible for him to offer the another subject, alternative subject. So that is possible. Then digital storage securely stores and manages the academic record. So the objectives of the ABC: credit recognition, credit accumulation, multiple entry, multiple exit. Okay, in multiple entry, it is being provided in the ANP 2020 that कि बाई चांस इफ द स्टूडेंट लीव्स द एजुकेशन, देन इन दैट केस विद इन 7 years ही कैन कम बैक एंड ज्वाइन द एजुकेशन. मतलब एक फर्स्ट ईयर में बच्चा आया था, किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं कर पाया, वो छोड़ के चला गया, तो वो 7 साल के अंदर कभी भी आके अपना एजुकेशन वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है. सो द मल्टीपल एंट्री इज पॉसिबल, स्टूडेंट्स मोबिलिटी इज देयर. ओके, एंड दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स of the any basically the ABC ID. So how it works? Students creates a ABC ID. Okay, once the ABC ID is created, no need to create it again and again.
एक जगह 10वीं में अगर हो गया तो 12वीं में जाएगा तो फिर से नहीं आएगा, ठीक है। या 12वीं से वो कहीं पे किसी कॉलेज में जाएगा तो वही वो क्रीडेंशियल शेयर करेगा। स्टूडेंट शेयर एबीसी आईडी विथ एआई academic institution. Okay, AI captures ABC ID. AI prepares the input file along with the ABC ID in the NAD format. AI upload the CSV and credits earned will reflect in the student ABC account. तो वो अगर मान लीजिए 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री एमटेक पीएचडी जो कर रहा है वो सारे के सारे क्रेडेंशियल अलग अलग जगह के जो है वो एक साथ उसके यहाँ पे डिजिटली एक एबीसी आईडी में स्टोर किए जाएंगे। सो इन दैट वे एबीसी आईडी इज बीइंग क्रिएटेड एंड दिस इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर यू कैन डिजिटली स्टोर द क्रेडेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसेस दिया है। डिजी लॉकर है, देन ऑथेंटिकेशन है, सिलेक्शन है, रिक्विजिशन है एंड गेट द अपार कार्ड, okay, APAR ID. So normally schools are creating the APAR ID for the students, then requisition, selection, authentication and Umang. So this is the process which is available on the even website of the government of India. By this way it will work. So this is the ABC ID where the technology is playing the role, important role, and whether your institution has created the ABC ID or not, that I don't know. But if it is created, then it is to be stored, digitally document to be stored, and at the end of the completion of their 4 years, they will take with their ABC ID, along with hard copies will be there, but they will have their ABC ID. Then this is the 3 types of education system which is being provided in the NEP 2020, multidisciplinary, interdisciplinary, and the transdisciplinary education. Okay, interdisciplinary means combination of 2 or more academic disciplines into the one. Okay, 2 or more combination like a mechanical stream, electronic stream, it is being merged together, okay, and can have the interdisciplinary course like a mechatronics engineering. Okay, so multidisciplinary, here we are providing the options of the minor also. Okay, in some of the time minor something, minor जो ब्रांच के नाम से न देते हुए माइनर किसी सब्जेक्ट के नाम से भी दिया गया है कि इसमें माइनर उसमें माइनर। अभी आप ऑटोनॉमस है लेकिन जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम जो डिज़ाइन हो रहा है उसमें माइनर कोई ब्रांच का नहीं दे रहे, वो माइनर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दे रहे वो, ठीक है। तो इसलिए कैसा है कि माइनर डिग्री देने की, मल्टीडिसिप्लिनरी देने की डिग्री देने की जो है वो प्रोविज़न है, जिसको हम लोग जो है हमारा इलेक्टिव है तो उसको प्रोग्राम इलेक्टिव बोलेंगे और बाकी का जो है उसको जेनरिक इलेक्टिव बोलते हैं या फिर ओपन इलेक्टिव उसको बोलते हैं, विच आर फ्रॉम द अदर ब्रांचेस। देन ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन एरिया विद अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स विद इन वन हम बोलते हैं कि आइडेंटिफाई द वीक स्टूडेंट एंड ब्राइट स्टूडेंट। ओके, वीक स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं और
ब्राइट स्टूडेंट जो है उनको कॉन्फ्रेंस भेजते हैं, उनको वर्कशॉप भेजते हैं, उनको वो डेवलप करते हैं। तो ये जो सारी मेथोडोलॉजी रहेंगी, इसको हम एक्सेलरेटेड लर्निंग बोलते हैं, ये सारी ब्राइट स्टूडेंट के लिए रहेगी। मतलब कैसा है कि इफ द स्टूडेंट इज ब्राइट, इंस्टेड ऑफ लर्निंग इन द सेम फैशन, इफ यू वांट टू अर्न ऑनर्स डिग्री, लेट हिम टेक एडिशनल 18 to 20 क्रेडिट। लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ है, एडीपी ने ऐसे बताया। ओके, आपके यूनिवर्सिटी में कभी क्या हो गया, 160 क्रेडिट का करिकुलम है। ओके, 160 क्रेडिट का करिकुलम होना चाहिए, ये एआईसीटी ने बताया मॉडल करिकुलम में कि भाई 160 क्रेडिट का होना चाहिए। अब 160 क्रेडिट के अलावा उसको अगर ब्राइट स्टूडेंट है, उसको अगर ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो उसको 18 से 20 क्रेडिट अलग से लेने पड़ेंगे, अलग से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। माइनर की कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए तो कंप्यूटर साइंस के 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 18 से 20 क्रेडिट पढ़ने पड़ेंगे, तब उसको माइनर कंप्यूटर साइंस मिलेगा। तो ये 160 तो मिनिमम है, 160 के ऊपर होना चाहिए 18 से 20। तो यू चेक विद योर करिकुलम, यूनिवर्सिटी करिकुलम, whether it is happening in the same fashion or not, I don't know, but NEP says that the bright student या फिर accelerated learning जो बोलते हैं हम लोग, accelerated learning मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम में पहले कैसा था कि आप एक जगह पढ़ रहे हो तो दूसरे जगह आपको दूसरी डिग्री करने की कोई मुभा नहीं थी, प्रोविजन नहीं थी। आप अगर ब्राइट है, आप अगर 2 जगह करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। फिजिकल मोड में आप एक जगह करोगे और ऑनलाइन मोड में दूसरी जगह करोगे, बट यू हैव बीन परमिटेड फॉर दैट एक्सेलरेटेड लर्निंग में। तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन, दिस इज द फीचर्स ऑफ द NEP 2020. Okay. Then okay, levels, NSQF level. तो NSQF लेवल फर्स्ट ईयर से अगर बच्चा पास होके जाता है तो 12वीं करके जो फर्स्ट ईयर में आता है तो उसकी लेवल क्या है, NSQF लेवल 4 है। 12 करके अगर आता है तो उसकी लेवल क्या है, 4 है। 10th करके अगर बच्चा है तो उसकी लेवल क्या है, 3 है, 3.0। अगर मान लीजिए कि डिप्लोमा करके आता है तो उसकी लेवल क्या है, डिप्लोमा करके आता है तो 4.5। ओके, डिप्लोमा करके आता है तो कहाँ से आता है, 4.5। लैटरल एंट्री में वो कहाँ ज्वाइन करता है, सेकंड ईयर में ज्वाइन करता है। तो दिस इज द लेवल्स, विथ रिस्पेक्ट टू लेवल इट इज बीइंग डिफाइंड। ओके, इफ द स्टूडेंट कंप्लीट 40 क्रेडिट्स एंड इफ द स्टूडेंट टेक अ एग्जिट, हिज लेवल मैप्ड इज, पास होने के बाद फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर उसने किए हैं, दोनों सेमेस्टर सक्सेसफुली पास किए, उसने क्रेडिट अर्न किए 40। अगर एजुकेशन छोड़ के जाना चाहता है तो ही इज परमिटेड टू डू दैट। उसको क्या मिलने वाला है, यूजी सर्टिफिकेट 1 ईयर का। ठीक है, अभी मान लीजिए कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद में, दोनों सेमेस्टर क्लियर होने के बाद में, अगर मान लीजिए कि एजुकेशन छोड़ के जाता है तो कुछ उसके हाथ में आता था क्या, 2 सेमेस्टर के मार्कशीट के अलावा कुछ नहीं, उसके बेसिस के ऊपर कुछ कर सकता था क्या, नहीं कर सकता था। तो एनईपी में दिस इज बीइंग पॉसिबल। ओके, सेकंड ईयर, इफ द स्टूडेंट कंप्लीट द सेकंड ईयर एंड अर्न्स 40 फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के 40 क्रेडिट, हर एक साल एक 40-40 क्रेडिट का रहेगा। ठीक है, तो 80 क्रेडिट, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड विद द यूजी डिप्लोमा। ओके, उनको क्या मिलेगा, यूजी डिप्लोमा। अब ये यूजी डिप्लोमा इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एजुकेशन, विच इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एजुकेशन। So 5.0 level is basically the UG diploma. 5.5 the 3 years bachelor's degree. Okay, as per the model curriculum which is being provided, 120 credits he is earning, so he is eligible for the getting a bachelor's degree. A bachelor's degree, bachelor's in engineering nahi degi university. What it will, they will give bachelor of vocation, BVoc or BSc engineering degree. तो मतलब क्या ऐसा है कि स्टूडेंट इफ दे आर टेकिंग एग्जिट फ्रॉम द थर्ड ईयर, इन दैट केस दे विल बी अवॉर्डेड विद द बैचलर ऑफ वोकेशन और बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री। 4 years डिग्री
Okay, in the regular pattern, if they are earning 160 credit, 4 years degree, bachelor's degree in engineering and technology. So those who are completing the bachelor's degree of 4 years, earning 160 credit, they are eligible to go for the management program of 1 year duration. जिन्होंने 4 साल में डिग्री की है, तो लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में ऑलरेडी एमबीए के लिए एडमिशंस लैटरल एंट्री करके सेकंड ईयर में देना शुरू किया है, लेकिन लैटरल एंट्री के लिए कोई अलग से वैकेंसीज नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ 10% वैकेंसीज है इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट प्रोग्राम में अलग से कोई वैकेंसीज नहीं है. ओके, बट इफ द सीट्स आर वैकेंट इन द फर्स्ट ईयर, दैट सीट्स कैन बी अलॉटेड टू द लैटरल एंट्री स्टूडेंट जिन्होंने 4 साल की डिग्री करके आए हैं. Okay, and earning the 160 credit. So 6.0 level, the bachelor's degree or the honors degree. So we have seen just now the research degree as well as honors degree. Research degree का path चालू होगा उसका 5th semester onward, wherein students will not take any kind of courses, any kind of subjects they will not study. Rather than that, they will take up one subject, they will take up one project under the guidance of the supervisor who is available in the department, complete the project, research project for 2 years and earn a degree of 4-year BTech degree in the research. Okay, and these are the various levels for the PG program also. So 7.0, 8.0, that is 240 and the credits, thesis submission and all. So this is the admission path as per the NEP 2020. Okay, here 10 standard students completed a 10 standard level 3.0, certificate of vocation 11 standard 3.5 and 12 standard 4.0. तो हमारे स्टेट में क्या है, 10वीं के बाद वो ITI ज्वाइन करता है. ओके, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ITI में जाता है. तो ITI करने वाला स्टूडेंट जो कि NSQF लेवल के हिसाब से वो 4.0 लेवल कंप्लीट करके आ रहा है, लेकिन उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलती है. ओके, इंजीनियरिंग में दे आर नॉट बीइंग परमिटेड. तो उसके लिए अभी देयर ITI इज इक्विवेलेंट टू द 12th क्लास एजुकेशन प्रोवाइडेड दे आर कंप्लीटिंग वन लैंग्वेज सब्जेक्ट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. ओके, NIOS से वो अगर एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट करते हैं ITI करने के साथ साथ, देन दे विल बी गेटिंग अ 12th क्लास डिप्लोमा ऑल्सो एंड दे कैन एंटर इनटू द इंजीनियरिंग एजुकेशन. तो यहाँ पे देखिए कि 4.0 से लेवल स्टार्ट हो गई है. तो UG सर्टिफिकेट 4.5, ओके, एग्जिट ले रहा है 1 साल के बाद में 4.5, 5.2 साल के बाद में एग्जिट ले रहा है UG डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग. ओके, 3 साल के बाद में एग्जिट ले रहा है. तो बैचलर ऑफ वोकेशन और द BSc इंजीनियरिंग 4 साल के बाद में रेगुलर पैटर्न में एग्जिट ले रहा है. तो लेवल हो गई 6.0, बैचलर ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, और ये यहाँ पे वो 4 साल की डिग्री करके जा रहा है, तो उसके लिए उधर का जो प्रोग्राम है वो मैनेजमेंट प्रोग्राम 1 साल का है. अभी लास्ट जो लेक्चर दिया था मैंने, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या महाराष्ट्र स्टेट में NEP के अंतर्गत MTech प्रोग्राम जो कि आपके लिए इच्छुक हो सकते हैं कि 1 साल का हो गया कि नहीं हो गया है ना, क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो PG प्रोग्राम 1 साल का. तो MTech के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है. सिर्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम है ना, MBA है, MCA है, इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने 1 साल का कर दिया है. इफ दे हैव कंप्लीटेड द 4 years डिग्री इन द प्रीवियस एजुकेशन. सो दिस इज द एडमिशन पाथ एज पर द NEP 2020. सो दिस इज NEP curriculum framework which offers flexibility to move from one discipline to another discipline. Okay, flexibility to switch to alternative modes of learning, offline, online. Okay, UGC suggested that the 40 credits, okay, 40% of the credits can be mapped through the online mode. लेकिन उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ में वो ऐसा पूरी तरह से चालू नहीं है, बिकॉज वी नीड टू हैव डिजिटल कंटेंट्स ऑल्सो एंड दैट मेथोडोलॉजी ऑल्सो.
So multiple entry and multiple exit we have seen just now. Lateral entry, okay. But lateral entry in the IITs, NITs, currently it is not being permitted. IIT में जाना है तो JEE एडवांस करके ही जाएगा, फर्स्ट ईयर में ही जाएगा. डायरेक्ट सेकंड ईयर में lateral entry IITs में नॉट परमिटेड है. ठीक है. NITs में जो है डायरेक्ट सेकंड ईयर में lateral entry परमिटेड नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह जो है वो ऑलरेडी lateral entry थी. ओके, lateral entry थी मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर में डिप्लोमा करके आती ही है. ओके, इसमें लैटरल एंट्री का यूनिवर्सिटीज़ ने जो मीनिंग लिया है वो लिया है कि भाई वो अगर मान लीजिए कि एग्जिट होता है एजुकेशन सिस्टम से, तो विद इन 7 years दैट कैंडिडेट कैन कम एंड कंप्लीट हिज एजुकेशन. नाउ academic equivalence, okay, means that credits earned and accumulated, this is to be established. Okay, example, first year UG, first year BTech to be treated equivalent for seeking admission to the second year of UG program, or otherwise ITI pass out 2 years after 10th class, ITI diesel mechanic, ITI electrician, these are all 2 years courses. ITI in computer operation, कोपा जिसको बोलते हैं, वो it is a 1 year duration. Okay, that 1 year duration ITIs are not eligible, but 2 years का अगर किया है, ITI किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से उसको एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, एंड बाय कंप्लीटिंग द 12th क्लास, बाय कंप्लीटिंग दैट लैंग्वेज सब्जेक्ट, they will be able to get a certificate of 12th class. Once they get a certificate of the 12th class, they can enter into the other education system. मतलब अगर उसको BA करना है, BSc करना है, BCom करना है या इंजीनियरिंग करना है, तो भी ITI के बाद में वो लैंग्वेज सब्जेक्ट करके पॉसिबल है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ इक्विवेलेंस इज टू बी सेट अप. ओके, this is the credit transfer mechanism and the redemption of the point. Okay, I talked about the cluster university which is being coming up in the Nagpur also in next year, where एक institute से दूसरे institute में अगर वो जाता है कुछ subject अगर if they are learning in the different institute, then their credit should be mapped. उसका credit waste नहीं होना चाहिए. Okay, मान लीजिए Institute of Fine Arts जिसको हम चित्रकला महाविद्यालय बोलते हैं, if it is a part of the cluster university, if civil engineer is good in that fine arts, if you want to attend certain credit through the Institute of Fine Art, he is permitted to do that. तो उसके लिए कुछ इक्विवेलेंस सेटअप करना पड़ेगा, जैसे बिल्डिंग ड्राइंग एंड मटेरियल्स है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से इक्विवेलेंस इज टू बी सेटअप, and they can be permitted from one institution to the another institution, and these ABCID which they are carrying with us will help us in redemption of the credits. So minor major which we have discussed now. Okay, there are 8 verticals which is being mentioned. That is major, engineering program core, multidisciplinary minor, emerging specialization, minor, open electives, vocational education, AEC, ability enhancement courses and all. Okay, these are the 8 verticals, and Government of Maharashtra has released their GR 2 years ago according to this 8 vertical after studying the NEP, और कौन से सेमिस्टर में क्या क्या होना चाहिए ये बाकायदा उन्होंने करके ही दिया है. उसके हिसाब से autonomous institution have done. Okay, similarly universities are also incorporating as per the GR which is released by the Government of Maharashtra. Okay. So generic elective, okay, or open elective, so it is the basket which is to be created for 18 to 20 credit. उस baskets में से some subject can be taken up by the students. Yes, okay. Now how the technology is going to play the role, कितना कब तक लेना?
10 मिनट में ठीक. So the technology is going to play the role in the modes of the teaching learning. Okay, offline method which we are using, chalkboard, use of the technology, participatory. Okay, now we have the even the blended learning modes. Okay, using the virtual platform. ठीक है. For currently during the corona period we have used the virtual platforms, and under that virtual platform हमने practical complete किए. But here in this case, as per the guidelines of the UGC, that 40% of the credit can be mapped through the online mode. So virtual platform can be offered to them, and through some NPTEL courses, MOOCs courses, SWAYAM courses, their credits can be earned or their credits can be mapped. So there also technology is going to play the role. In one of the autonomous institution, this was the question कि भाई एनपीटीएल का कोर्स करके अगर मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने क्वेरी पूछी थी कि एनपीटीएल का कोर्स करके अगर वो मतलब वो क्रेडिट अर्न करता है तो वो नेचुरली बच्चा पूछेगा कि भाई फीस क्यों दूं आपको कॉलेज को, व्हेन आई एम अर्निंग माय क्रेडिट्स थ्रू द एनपीटीएल कोर्सेज. एनपीटीएल को तो मैंने अलग से कोर्स फी दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे 2000, 4000, 5000, व्हाई आई शुड पे द फीस टू यू. ओके, सेम क्वेश्चन जैसे कि वेल्लोर में आया था, वेल्लोर यूनिवर्सिटी में, विच इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, कि वहाँ का बच्चा नीरी में आके प्रोजेक्ट करता है एमटेक का 1 साल. तो पेरेंट्स ने बोला था कि हम लोग फीस क्यों दें आपको, यहाँ नीरी में बच्चा रह रहा है, उसके लिए खर्चा आ रहा है, नीरी को कुछ फीस दे रहे हैं, कैलिफोर्निया बच्चा जा रहा है वहाँ पे फीस दे रहे हैं. Then they have come up with a certain kind of mechanism. So in this case, the few courses, ultimately autonomous institution has to decide which type of courses can be given to the NPTEL platform. जैसे कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कहना था कि 40% कोर्सेस अगर NPTEL के थ्रू मैप करने के लिए लगाएंगे तो मैनेजमेंट हमारा टीचर क्यों रखेंगे, बोले 40% टीचर कम रखेंगे, बोले कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, COE रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेंगे, बोले ठीक है ना. सो इट इज टू बी थॉट ऑफ बाय दैट यूनिवर्सिटी, बाय दैट autonomous institution. So this is the using the virtual platform, and here the technology is going to play the role. Okay, in examination, class test, quizzes, assignment, where the online methodologies will be used. Okay, and you can see that the culture of assessment, it will be transforming, it will be changed. Here the AI based software to help track of the progress of the student to enable them to make optimal career choices. Okay, so artificial intelligence software to be used in case of your progress card, preparing the progress card, monitoring the performance of the child, monitoring the performance of the student, and everything. Okay, so the transfer of culture of assessment will be there, and technology is going to play the role. This is the assessment management plan which is provided in the NEP. You can change it, you can have the different type of assessment where the daily formative assessment, then unit assessment, end of the course summative assessment is there. Okay. Then here progress card, holistic progress card. Okay, we are talking about giving a due weightage to the extracurricular activities, co-curricular activities. Then naturally we need to have the holistic progress card will actively involve parents in their children's education, and AI based software to be developed to track the growth of the school years and to help students make optimal career choices. Okay, so this is what it is being expected. For the same reason, in NEP 2020, like a private engineering colleges, like a NITs, where NBA is applicable, National Board of Accreditation, NBA certificate or NBA they have to get in order to have the quality marks, okay, for to proving their quality. Okay, otherwise NAC accreditation is not applicable to them. But other institutes also, private institute, universities, NAC and NBA is being applicable. Now it is being thought of that the accreditation boards will be set up at the school level, और 8वीं क्लास से उसका accreditation framework रहेगा, और schools को भी accreditation कराना
उसका क्वालिटी पैरामीटर पे आना वो जरूरी रहेगा. सो फॉर दैट पर्पज द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड वेयर द यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द new technology in examination system. Okay, makeup exam for the slow learner. This is already being you are conducting. Okay, but I hope that it is not happening in the technology mode. In some of the colleges, the on-screen valuation is there. In your nearby college, Paluti College, where I had been to last month, the on-screen valuation is there. Papers are being set and it is being valued in the on-screen mode. Hard copy is not there. So in the new technology will be there in the examination system. So this I will not discuss because teacher's role is more important in case of the NEP 2020. Dual degree program, it was already there with the foreign universities. Few of the private engineering institutes in Pune, they have launched with the dual degree program or the twinning program. It is already being started with the permission of the AICTE. Now here, okay, we have discussed that there is no hard separation between co-curricular, extracurricular or the arts, commerce, science. Okay. In the state of Maharashtra, it is under the implementation this year. There will be integration of the subject through arts integrated, sports integrated. Okay, promotion of the multilingual teaching and taking up the examination in the multilingual language. It is also being permitted. Okay, in diploma in engineering education, it is permitted. University has to permit for that, but provided that the content should be there, books should be there in the regional languages. At present, the books are not there in the regional languages. Sufficient books are not there. Therefore, आपके अगर AICTE के वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी उन्होंने इनवाइट किए हैं प्रपोजल जिसकी को भी बुक को ट्रांसलेट करना है या बुक को लिखना है रीजनल लैंग्वेजेस में. दे आर बीइंग परमिटेड. दे कैन सबमिट देयर प्रपोजल टू द AICTE. Integrating the vocational education at all levels, right from the 8th standards. Okay, जैसे कि टेक्निकल हाई स्कूल थे उसको अभी अलग ही स्ट्रीम देंगे वोकेशनल एजुकेशन की. तो वो मतलब टेक्निकल हाई स्कूल जैसे 2 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं जाएगा टेक्निकल हाई स्कूल में. वन डे completely entirely student will be taking up the vocational education and even after the 10th class he can earn his bread and butter through this type of skill courses. So this is about the thrust technologies, artificial intelligence, 3D printing technology and all. So one nation, one platform, okay, that is SWAYAM and all. Pilot studies are being taken up. It is not that it is implemented everywhere in the all the states, even the Maharashtra state also. अपर आईडी अभी बन रहे हैं, यहाँ से आगे लेके चलेंगे. हार्ड सेपरेशंस अभी रिमूव हो रहे हैं. So it will take another 4-5 years of time to successfully implement the guidelines of the NEP 2020. What is the role of the HEIs in using the technology and integrating the technology? Higher Educational Institute, it will play an active role in conducting research on disruptive versions of instruction material. HEI will conduct the targeted training for job readiness and address skilling, de-skilling and scaling. Okay, universities will aim to offer PhDs and master's program in core areas such as machine learning as well as multidisciplinary fields, AI and other fields. So this will be the role of the HEI, which is very important role will be played by the HEI in case of the technology use and integration. I don't know what will happen to the colleges where the entire education is in regional language. जैसे कि आर्ट्स का कोर्स हम बोलते हैं तो वहाँ पे पूरा मराठी में ही होता है सब कुछ,
या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही पूरी पढ़ाई से लेके आगे का एजुकेशन जो है वो रीजनल लैंग्वेज में ही होता है. So how they will cope up with the such kind of use of the technology, but ultimately teachers education is also being discussed in the NEP 2020, and this is what the process of capacity building or teachers education which is being going on, which is sponsored by the ministry. So finally we will come to the conclusion that there is a use of the technology at many of the places as per the NEP. One thing is that assessment process, okay, technology intervention is there in the assessment process. Similarly, okay, delivering the subject or delivery of the content, there also technology is playing a role. Okay, digital content or the modules is to be developed by the college itself, or otherwise help can be taken from the Swayam, MOOCs and other platform. Monitoring the performance of the child, monitoring the performance of the student, it will be done through the holistic progress card, making use of the AI softwares and all. And then the valuation also, it will be done in the by using a technology, on-screen valuation or different kind of method. And NEP recognizes that the teacher's training, it is being required, and high quality content as a pedagogy. So by 2030, teachers education will gradually be moved to the multidisciplinary colleges and the universities, and each teacher will be expected to participate in at least 50 hours of CPD opportunities every year for their own professional development driven by their own interests. So technology intervention is there, technology use is there, but who is going to implement that technology? Ultimately, you teachers has to implement it successfully if you want to implement the NEP guidelines into your curriculum, into your institution or what. Okay? So thank you very much. Thanks a lot for the patience hearing. So this will happen, transforming the landscape, only with the collaboration of all you people. Otherwise, a lone person cannot do that. So that's why I have mentioned that let us work together. Okay, academia, students, industry, and all stakeholders, when they are joining together, then only this landscape can be transformed, and there will be a use of the more and more technology into the academic institution as per the NEP 2020. Thank you very much. If any queries are there, just ask. Okay, fees टाटा मोटर्स भरेंगे, लेके जाने की जवाबदारी टाटा मोटर्स की रहेंगी. प्रैक्टिकल सारे जो स्किल कंपोनेंट वाले इस तरह से डिज़ाइन किए गए कि प्रैक्टिकल सब उनके टाटा मोटर्स के प्लांट में होंगे. ओके, और थेरोटिकल कंपोनेंट के लिए वो बिट्स पिलानी में जाएंगे और 5 साल में अपना डिग्री प्रोग्राम जो है वो बीटेक कंप्लीट करेंगे with the assistance of the Tata Motor. So Mahindra has launched with this scheme, Tata Motors has launched with this scheme, Ashok Leyland is having this scheme. Okay, टाइप किए उन्होंने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ में. विप्रो इज हैविंग फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट्स. सो ये जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है, ये उनको जॉब करते करते ही डिग्री करना है, उसीलिए करिकुलम डिज़ाइन किया गया है. एंड वाई कंपनीज हैव डिज़ाइन बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग अ डिप्लोमा इंजीनियर टू वर्क ऑन द शॉप फ्लोर. ठीक है, अदरवाइज जो आपके जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, वहाँ पे वो परमिट नहीं है. ओके, मतलब जॉब करेगा और इधर एडमिशन लेगा, ओके, फुल टाइम कोर्स में, दैट इज़ नॉट बीइंग परमिटेड. ओके, दे हैव टू गो फॉर द ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन प्रोग्राम्स. ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. हाँ. हाँ, नहीं, पार्ट टाइम जॉब इज डिफरेंट थिंग. ओके, उसको कैसे है कि अर्न एंड लर्न स्कीम बोलते हैं. अर्न एंड लर्न स्कीम इट इज़ परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आल्सो. लेकिन अर्न एंड लर्न स्कीम में ये नहीं बताया गया है कि क्लासेस छोड़ के जॉब करें. ओके, इफ़ यू आर वर्किंग एट सम कंप्यूटर सेंटर इन द इवनिंग पार्ट टाइम, ओके, आप सुबह जाके पेपर बेचते हो, पेपर घर घर में डालते हो, किसी घर घर में दूध डालते हो, तो
तो कॉलेज डोंट हैव द ऑप्शन, मतलब कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और वो तो परमिटेड है, पार्ट टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके। लेकिन आप फुल टाइम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप फुल टाइम कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं, ओके, तो वो परमिटेड नहीं है। और ऐसे जितने सारे बच्चे वो करते हैं, तो फाइनली हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब इंटरव्यूअर करके या एग्जामिनर करके जाता है, तो उनके सब डिग्रीज में प्रॉब्लम्स आते हैं कि भाई फुल टाइम एक्सपीरियंस भी दिखाते हैं और फुल टाइम कोर्स भी क्या है ऐसे दिखाते हैं। वो हाउ इट इज़ पॉसिबल व्हेन सेम पर्सन इज़ बीइंग एम्प्लॉयड इन दी विप्रो, ओके, विप्रो में उसको एम्प्लॉय किया है और उसी दरमियान अगर उसने बीटेक की डिग्री की है, पॉसिबल कैसे है? नॉट पॉसिबल। इसलिए कुछ कंपनीज जो हैं, जैसे कि नागपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, सीएट टायर्स है, डिप्लोमा इंजीनियर को रिक्रूट करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स ही अपने पास रखते हैं 3 साल के लिए, क्योंकि क्या है कि वो किसी जगह एडमिशन लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम आ गई तो महीना भर छुट्टी लेते हैं, तो वो कंपनी का प्रोडक्शन हैम्पर होता है। महीना भर छुट्टी लेंगे इंजीनियर तो कैसे चलेगा? तो इसलिए अर्निंग फॉर योर फैमिली इन द पार्ट टाइम, दैट इज़ ऑल्सो परमिटेड अंडर द अर्न एंड लर्न स्कीम, ओके, वो अलग है, फुल टाइम का ये नहीं है। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड। हाँ, 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 डिग्री में अभी ब्रांच में एडमिशन हो रहा है, हाँ, तो उसको क्रेडिट्स अगर वो गेन नहीं करता है या उसके कुछ सब्जेक्ट्स बैकलॉग्स आते हैं हाँ। इंस्टीट्यूट में, तो वो इंस्टीट्यूट चेंज कर सकता है क्या, या ब्रांच चेंज कर सकता है क्या? नहीं, देखिए, अपने रूल्स के हिसाब से कैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। अपने स्टेट के रूल्स के हिसाब से कैसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मतलब आपके यहाँ ऑटोनॉमस में पढ़ रहा है वो, है ना, उसको यहाँ से नहीं जम रहा है, अगर पैलोटी जाना है या पैलोटी से वहाँ यहाँ आना है, दैट इज़ नॉट बीइंग पॉसिबल, दैट इज़ नॉट बीइंग परमिटेड। यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड सिस्टम में परमिटेड है, ठीक है, मतलब आप दोनों कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, सो दे कैन मूव फ्रॉम वन कॉलेज टू द अनदर कॉलेज, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ अगर अलग अलग है, मान लीजिए नागपुर यूनिवर्सिटी से आपको आपके फादर की ट्रांसफ़र हो जाती है अमरावती यूनिवर्सिटी रीजन में, पुणे यूनिवर्सिटी रीजन में, वो भी प्रोवाइडेड है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन कैंडिडेट फ्रॉम द GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग which was under the Savitribhai Phule Pune University has been transferred to your college in the second year of the electronics engineering. उसका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उनके नागपुर यूनिवर्सिटी ने बोला सोशल साइंस और इंग्लिश जो है ये आपको देना पड़ेगा, ये 2 सब्जेक्ट पुणे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में नहीं थे, है ना, तो इसलिए वो उसको देना पड़ा एलिजिबिलिटी के लिए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर इज परमिटेड, okay, as well as the within the university institution can be transferred, but autonomous से एक जगह से दूसरे जगह जो है वो अभी परमिट नहीं किया गया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी अगर है, वी हैव डिस्कस द क्लस्टर यूनिवर्सिटी। अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स का कॉलेज भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस भी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मॉरिस कॉलेज भी है जो कि BSc या साइंस के कोर्सेस ऑफर करता है, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। सो इफ यू आर पार्ट ऑफ द क्लस्टर यूनिवर्सिटी, दैट इज बीइंग पॉसिबल। उसको अगर पूरी लाइन चेंज करना है, इंजीनियरिंग से लेके कुछ क्रेडिट यहाँ अर्न किए उधर ही जाना है, फॉरेंसिक साइंस में ही करना है अपना BSc MSc जो भी है, ओके, दैट इज पॉसिबल, बट अदर देन क्लस्टर यूनिवर्सिटी दैट इज नॉट बीइंग पॉसिबल। यू हैव टू सेट अप द इक्विवेलेंस। एनी अदर क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन। इसका मतलब आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द इंस्टीट्यूशन authorities that good churning of thoughts is going on, and it's for the capacity building, so they are learning something new, okay, through this faculty development program. Okay, thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for such an informative and engaging lecture. Now we are joined with Honorable Principal Sir, Vice Principal Ma'am,
and Dr. Prasad V. Joshi, sir. So now I would like to take. Now I would like to invite Honorable Principal Dr. P.L. Nathode sir to felicitate our today's expert Dr. G.K. Avari sir. Thank you, sir. Good afternoon.